Okay, so let's start with HTML images. So how to add images in HTML? What kind of images we can use in HTML? So चलिए start करते हैं with HTML images. So let's open a web page. Okay, so start with a new file first. So this is my new file. Control N. Save the file on desktop and let's say मेरा file name है index.html. ठीक है. So basic web page structure through Emmet. So the topic HTML images for responsive क्या use करते हैं? Meta viewport. तो meta viewport किसके लिए है? For responsive web page design. And this is the meta viewport. So we got the title, heading, and let's start with H1. So the heading today is HTML images. So how to add images in web? चलिए start करते हैं. So now HTML support images and 1 second. ठीक है. So HTML support images and we have 4 popular image extension in web like JPEG hai, PNG and SVG and GIF. So HTML images are defined using IMG tag. So to add an image we use IMG tag. So less than IMG, this is the image tag. So image कैसा tag है? Image is unpair tag. So image में कभी भी कोई child या text नहीं आएगा. But with IMG we have 2 compulsory attributes. See, if I use emmet, just type IMG and press tab. See, you got 2 compulsory attributes. So image के दोनों compulsory attributes कौन-कौन से हैं? First SRC and the second is ALT, which is alternative, means alt text. So the पहला image का SRC है. So what is SRC? SRC is image location, the path of the image. source image location. हाँ, location और the path. In simple हम इसको क्या बोलेंगे? The path. Path कहाँ पे है? So my directory is desktop now. So इस desktop से I can pick any folder. ये कोई भी folder यहाँ I have some pictures over there ये जैसे हैं. So I can easily pick those files directly. So bracket will assist you with the file. जैसे मैंने type किया logo. So I got logo.jpg. So this is the picture. You can see the preview and check your site. So this is the picture, but it's a JPEG image. JPEG में क्या होता है? There is no transparency. See, इसका background कैसा है? It's white. ये कैसा background है? White. Let's add another picture. Apple touch icon. So it's a touch icon, but it's again PNG, but again there is no transparency. Okay, I'll use logo.png. This is the image. So alt क्या होता है? The alternative text. If this picture is not visible to the browser, तो इसका एक descriptive text क्या होगा? कि वो किसकी image है? So the alt of this image should be check item. ठीक है? So image का name logo.jpg है path, but the alt should be checkitem.alt. Why we need src and why we need alt? src compulsory क्यों है? क्योंकि अगर src नहीं होगा तो क्या होगा? पिक्चर लोड नहीं होगी. And see, in that case, in that scenario, आपको alt will help you. So alt क्या कर रहा है आपको? path दे रहा है. So see, alt basically कब दिखाई देता है हमें? सर वो तो हम उस पे वो करेंगे तब आएगा ना, मतलब इंस्पेक्ट तो नीचे आएगा ना इंस्पेक्ट में बस. इंस्पेक्ट की जरूरत नहीं होती. सी राइट नाउ इमेज का एसआरसी मिसिंग है. देयर इज नो एसआरसी, सो एसआरसी इज मिसिंग. सो इन दिस केस जब एसआरसी मिसिंग हो या लोड ना हो, इन दैट केस वहां पे इमेज का ऑल्टरनेटिव क्या आएगा? इमेज का ऑल्ट. तो सी यूजिंग दिस एएलटी यू कैन इजीली जज कि यहाँ पे जो पिक्चर थी वो किसकी थी? टेक आइटम की. ठीक है. So this is ALT, which is alternative. So we have 4 popular image extensions. Overall, we have 5 extensions, but we use only 4 image extensions: JPEG, PNG, GIF, and SVG images in HTML. So सर compulsory अगर ALT मिसिंग होता तो ALT missing होता. So first see, तो कुछ क्या नहीं होता ब्राउजर ना. पे कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं वहाँ तो नहीं पड़ता. Yes, Komal. सर ये आप ये जो मेटा Yes, which meta? Viewport.
हेलो। व्यू पोर्ट वाला। हाँ, यस, हाँ बोलो। सर ये व्यू पोर्ट वाला कंटेंट ये क्यों यूज कर रहे हैं हम, ये पूछना है। ये हम रिस्पॉन्सिव के लिए यूज़ कर रहे हैं। बेसिकली राइट नाउ जो हम लोग स्क्रीन यूज़ कर रहे हैं, ये छोटी से लेके बहुत बड़ी वास्ट तक होती हैं। सो सी, अगर मैं मेटा का यूज़ नहीं करता एंड वी हैव H1 एंड लेट्स से वी हैव some paragraph text and let's say we have some dummy links, ठीक है? So we'll see the interface for desktop and mobile. Right now जो आप देख रहे हो, ये desktop का interface है, use inspect and this is a mobile toggle device bar, click this. तो ये जो interface है, ये किसका दिखा रहा है आपको? मोबाइल का। This is the mobile interface. See your mobile interface, this site is proper visible. You can read the heading, आपको link पढ़े जा रहे हैं, you can see the picture and ये text भी okay है. Now remove your meta viewport. So without meta viewport ये site ऐसे नजर आएगी. So can you read this link? No. So your hyperlinks are not visible. ठीक है? So basically होता क्या है, like the device which we are using, mobile device की बात करें, they have actually more resolution. जैसे 960, 980, 1000 and something. So अलग अलग डिवाइस के अलग अलग है, बट उनकी width मतलब the screen size is less. तो they have more pixels, but screen size कितना होता है उनका? कम होता है. So without viewport वो proper visible नहीं होता. So we want a common font size. तो ऐसा नहीं ना कि responsive में आपको font size भी change करना पड़ेगा. So that's why we use this meta viewport. ठीक है? So we use this meta viewport for responsive and see, refresh your page, see now this is proper visible. तो ये क्यों ऐड किया हमने? Responsive. साइट को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए, एंड इट्स कंपल्सरी नाउअडेज. ओके ओके, बैक टू इमेजेस. सर मुझे एक डाउट था Yeah. सर, मतलब अगर इस इमेज पे मतलब हमारे डेस्कटॉप पे तो ये इमेज है डाउनलोडेड, तो हमने यहाँ से अपलोड कर दी फाइल, पर अगर हम मतलब किसी ने मुझे ये भेज दिया, मतलब हम ओपन करेंगे तो हमारे में भी शो होगा, वो यूजुअली डाउनलोड करेंगे तो वेबसाइट उसके साथ। प्रोजेक्ट इज अ फोल्डर. जैसे अगर मुझे किसी को एक वेबसाइट भेजनी है तो आई सेंड द कंप्लीट फोल्डर. जैसे ये वेबसाइट का फोल्डर है, दिस इज माय एचटीएमएल पेज, दीज आर माय सीएसएस फाइल्स, ये मेरी जावास्क्रिप्ट फाइल्स हैं, ये फॉन्ट्स हैं और इसमें ये इमेजेस हैं. तो आई सेंड द सर कंप्लीट फोल्डर. सो व्हेन जब ये फोल्डर जाएगा तो उसका आईएमजी फोल्डर, उसके अंदर का पाथ भी तो जाएगा ना. When you use ओके FTP to upload, तो आप सिंगल HTML पेज अपलोड नहीं करोगे, you'll upload this complete folder. तो you open this 12 grid folder और इसके सारी फाइल्स को आप अपने सर्वर पे अपलोड कर दोगे ना. तो अभी ये रिलेटिव पाथ आपके सिस्टम का है, आगे जाके यही रिलेटिव पाथ आपके सर्वर का हो जाएगा. ओके हाँ सर. हाँ. So right now I'm using ओके this JPEG image from my desktop, but if I'll send you only index.html page, I'm not sending you this picture. तो ये पिक्चर आपके लैपटॉप पे काम नहीं करेगी. But yeah, I have an option. Okay, we were discussing ALT alt. So if you are not using alt, क्या कोई इशू है पेज पे? अभी तो No. नहीं। So alt के बिना भी पेज लोड हो रहा है. But now you need to validate your page, and as per W3C, ALT is compulsory. See, this is an error. So error क्या है? Image must include ALT attribute. So ALT attribute is compulsory और ALT की वैल्यू क्या होनी चाहिए? Descriptive. जैसे टेक एटम और टेक एटम लोगो यू कैन राइट. ठीक है? दिस इज द डिस्क्रिप्टिव वैल्यू. इससे क्या होता है, सर्च इंजन कैन रीड दिस पिक्चर एंड इफ यू सर्च दिस कीवर्ड इन गूगल इमेजेस, ये वाली इमेज वहां पे शो हो जाती है. लाइक सी, गूगल इमेजेस को कैसे सर्च करता है. सो आई ओपन गूगल and I click image session. Now my HTML versus CSS. This is my keyword, and see you can see so many images. Now see the fourth image. See, this is HTML versus CSS. This is just a simple image. This fourth picture. See this picture. Now this is from where we are getting this image. See the path, tutorial.techatom.com. So Google को HTML and CSS से related एक image मिली है. Why this image is there? Google पे ये image कैसे पहुंची? Using the alt. माय सर्वर से. तो आपकी वेबसाइट को ओके जब गूगल ने क्रॉल किया था, सी आई ओपन दिस इमेज, तो ये इमेज आपकी ओपन हो गई ऑन द सीएसएस पेज. इसका ALT alt जो था वो रिलेटिव होगा. So what is the alt of this image is HTML versus CSS. So see, the alt is HTML versus CSS. So that's why ये कीवर्ड सर्च करने पे this image is visible on Google. ठीक है? तो alt हमेशा कैसा होना चाहिए? Descriptive. So now if you are using alt, there is no validation error. तो दो attribute compulsory pictures के, first SRC and the second one is ALT alt.
Then we can also use other optional attributes like width. What is the real size of this image? 300. मुझे छोटा करना है, so I can use 200. तो इससे क्या हो रहा है, इमेज का साइज छोटा हो गया. बट इसका एक प्रैक्टिकल यूज भी है. व्हाट इज द प्रैक्टिकल यूज? सी विदाउट width and height we are using. So see there we have a paragraph at the bottom. ठीक है. Now I'll refresh the page. See, can you see this flickering? जब मैं पेज को रिफ्रेश कर रहा हूँ तो ये पैराग्राफ क्या यहीं पे आ रहा था पहले से पेज पे, या पहले कहीं ऊपर था ये? सी, so when I refresh my page n number of times, ये पैराग्राफ पहले कहाँ था? यहीं था या ऊपर था? So means ऊपर नीचे हो रहा है. means record my screen with multiple frames, more frame per second, जैसे जिसे हम कहते हैं स्लो मोशन. So in slow motion क्या हो रहा है, 1 सेकंड के अंदर स्टार्टिंग में क्या होगा, H1 was there, then ये पैराग्राफ यहाँ पे आएगा. That means पिक्चर पैराग्राफ से पहले आई है बाद में आई है. So ब्राउजर इमेज को हमेशा कैसे लोड करते हैं? लेटर ऑन, बाद में लोड करते हैं, असिंक्रोनस. तो ब्राउजर इमेज को कैसे लोड करेगा? असिंक्रोनस, यानी कि बाद में. पहले पेज चलेगा तो पेज में H1 आएगा, इमेज क्योंकि एक साथ है तो इमेज पैरेलल आएगा, और इमेज से पहले ब्राउजर पे क्या आ जाएगा, इमेज से पहले क्या जाएगा, पैराग्राफ. बट इसका ड्रॉबैक है, अगर साइट स्लो, ज्यादा स्लो है तो क्या होगा, सी ऐसे फ्लिकरिंग होगी बार बार. सो द सोल्यूशन इज यू कैन यूज दिस width and height attribute. So see इमेज की width 300 है, height 300 है. So let's say width 300 and now height 300. See the advantage. अब रिफ्रेश करो, सी ये पैराग्राफ यही रहेगा. So why we use these two attributes? ताकि इमेज का जो स्पेस होगा वो पहले से प्रिजर्व हो जाए. What is the advantage of using width and height? इमेज के लिए डेडिकेटेड स्पेस, जो प्लेस होल्डर है उसका, वो प्लेस जो वो स्पेस लेगा आगे फ्यूचर में, वो पहले से ही होल्ड हो जाएगा. ठीक है, तो स्पेस जो होगा इमेज का वो पहले से क्या हो जाएगा, होल्ड हो जाएगा. सो दैट्स द एडवांटेज ऑफ यूजिंग width and height attribute. And even if you want, हम इसको कम कर सकते हैं. लाइक इसके एस्पेक्ट रेशियो 1/1 है, सो 200 कर दो, इमेज छोटी हो जाएगी, और मेक इट 100/100. बट आई रेकमेंड, अगर इस इमेज को 100 दिखाना है तो इट्स बेटर कि आप पहले इसको फोटोशॉप से 100 साइज में कन्वर्ट कर दो. डोंट यूज विड्थ टू रिड्यूस द साइज. क्यों? सी दिस इमेज इन नेटवर्क, ये इमेज कितने JPEG है, कितने KB की है, 10.4 KB. सो इमेज तो इवन 300 तो भी कितने KB की है, 10.4. इवन इफ आई यूज 500, ऑल्दो we can't use 500 क्योंकि इमेज पिक्सेलेट हो जाएगी, पिक्सेल्स फट जाएंगे. सी स्टिल 10.4. so if you want to reduce the size or you want to view the small image, so better way क्या है, use this image और एक और इमेज से यूज करनी चाहिए. तो बेटर कि पहले आप फोटोशॉप पे जाके जस्ट रिड्यूस द साइज ऑफ दिस इमेज. तो इस इमेज को 100/100 कर दो. इससे बेनिफिट क्या होगा, when your image will load, वो पहले से ही लाइट साइज की होगी. and for this we have a picture tag in HTML5 ताकि डेस्कटॉप पे बड़ी इमेज और मोबाइल पे छोटी इमेज लोड करे. so see, for images we have another tag that is picture tag, but that is a part of HTML5. तो HTML5 के new tags में we have a picture tag. तो picture tag क्या करता है, see where is the picture, 1 second, picture, this is the picture tag, go to picture. See, we can use multiple source. So this image is logo.png is for desktop, और इसी में एक सोर्स है जिसका मीडिया है maximum 460 मींस मोबाइल पोर्ट्रेट मोड. वहां पे लोगो कौन सा ओपन होगा, लोगो SM. तो डेस्कटॉप पे बिग लोगो, मोबाइल की विंडो पे स्मॉल लोगो. इससे फायदा क्या है, योर वेबसाइट परफॉर्मेंस विल इंक्रीज, क्योंकि सेम लोगो मोबाइल पे यूज करने के साइट पे परफॉर्मेंस क्या हो जाती है, स्लो. ओके, so that's why we use this picture tag, that's a part of HTML5. so this is a normal image with src, or width and height are although optional, but still we recommend using width and height. but responsive mein we use CSS. so this is the image and how to use image. so what are the web formats, the extensions for images? सबसे पहला कौन सा है आपका, JPEG. so normally when you use your mobile phone, जब आप मोबाइल फोन से कोई भी फोटो क्लिक करते हो तो आपके फोन के एक्सटेंशंस क्या होते हैं फोटोज के, all are JPEG. JPEG is mainly used for a picture which is good for banners and photographs.
इन इमेजेस में देयर इज नो ट्रांसपेरेंसी, सो दैट्स व्हाई ये किस टाइप की होती हैं, रास्टर. सो व्हाट आर रास्टर इमेजेस एंड व्हाट आर वेक्टर इमेजेस, एनी आइडिया? फोटोशॉप फोटोशॉप पे बनी ऑल पिक्चर्स JPEG, PNG, GIF, they are raster image. So raster image means like this image is 300, we cannot extend the size, इसको increase नहीं कर सकते. So there is one more picture that is vector image, that is SVG. So like pic slash, now let's use an SVG image. So we have this aeroplane dot SVG. So check the size of this image, it's not good image, so use another image. Okay, we have this fog dot SVG. तो fog का size कितना है? Just small size है, 10 by 16 है. So this is the image, fog image. This is just 10 by 16. So just 10 pixel by 16. Now if I want to increase the width, मैं इसकी width को बढ़ाता हूँ. तो मैंने 10 को कितना कर दिया? 10 से 100 कर दिया. See, image is still there. 1000 कर दिया. क्या ये image pixelate हो रही है? तो ये इमेज अब पिक्सलेट कभी नहीं होती. सो दिस इज अ वेक्टर इमेज. तो डॉट एसवीजी कौन सा इमेज एक्सटेंशन है? तो डॉट एसवीजी की इमेजेस कैसी होती हैं आपकी? वेक्टर इमेजेस. तो वेक्टर इमेजेस का मतलब क्या है? आप इमेज को इंक्रीज और डिक्रीज दोनों कर सकते हो. और रास्टर में क्या होता है? वी कैन ओनली डिक्रीज, हम इंक्रीज नहीं कर सकते. तो जेपैग कैसी है? रास्टर. सेकंड आती है पीएनजी. पीएनजी इज द इमेज जिसमें बैकग्राउंड में ट्रांसपेरेंसीज भी होती है. जैसे दिस इज logo.png. तो ये भी लोगो है, दिस इज अगेन लोगो. दोनों में डिफरेंस है, एक जेपैग और एक पीएनजी है. तो ये कैसा है जेपैग, ये कैसा है पीएनजी. नाउ डू वन थिंग, बॉडी में स्टाइल देके चेंज द बैकग्राउंड. ठीक है, इट्स अ टेम्पररी बैकग्राउंड. दिस यहाँ पे देयर ये बैकग्राउंड कलर वाइट था, जबकि यहाँ पे ये कलर क्या है आपका बीच का, दिस इज ट्रांसपेरेंट कलर. तो ट्रांसपेरेंसी किसमें है? एसवीजी में, पीएनजी में. देयर इज नो, और जिफ में भी होती है, देयर इज नो ट्रांसपेरेंसी इन जेपैग. तो जेपैग का सबसे बड़ा मेजर ड्रॉबैक क्या है? नॉट हैविंग ट्रांसपेरेंसी. तो जेपैग में ट्रांसपेरेंसी मींस ट्रांसपेरेंट कलर नहीं होते. तो ट्रांसपेरेंसी के लिए वी हैव टू यूज पीएनजी, एंड नॉन ट्रांसपेरेंट लाइक बैनर इमेजेस के लिए वी यूज जेपीजी, जेपैग. देन थर्ड दैट इज जिफ. जिफ क्या होता है? ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट, मींस इमेज विद मोशन जिसमें एनिमेशंस होती हैं. जैसे लेट्स से वी हैव द बॉल डॉट जिफ. तो इट्स अ एनिमेटेड बॉल. तो एनिमेशन या मोशन सिर्फ दो इमेज में होता है, एक होता है जिफ में और एक होता है एसवीजी में. तो एसवीजी में क्या होता है आपका? एनिमेशन एंड मोशन होता है, लेकिन एसवीजी वेक्टर है. सो विच इज बेटर टू यूज, जिफ या एसवीजी? एसवीजी. ठीक है. सो फॉर एनिमेशन इट्स बेटर नाउ टू यूज एसवीजी. क्यों? क्योंकि जिफ की पिक्चर क्वालिटी सबसे पुअर होती है इसमें. जिफ यूज 8 बिट कलर्स. जिफ के कलर सबसे कम होते हैं, जिफ के कलर सिर्फ 8 बिट होते हैं. So SVG में we can use a number of colors. So it's better recommended to use SVG. Plus SVG को you can extend. Image को बड़ा कर सकते हो. इसको आप बड़ा नहीं कर सकते. So see, this image is how much? 40. So if you use with 200, तो image pixelate हो जाएगी. See? So GIF is animated image. So animations के लिए we can use GIF, or modern way is use SVG. So why we are recommending SVGs now? क्योंकि SVGs we can even edit in brackets. SVG को you can simply edit. See this. If you want to edit this fork image, so open fork.svg, use right click and open with brackets or VS Code. See, I'll open the image. See, this picture is visible. तो ये कौन सी फाइल है आपकी ब्रैकेट्स में जो ओपन हुई है? This is the same picture, fork.svg. इसका कलर क्या था? Blue. Okay. Now let's change the size with 100. See, now the color is blue. I want something else, a different color. So we have a with the color path. So path क्या है आपका? Blue. Go to blue, change the path to red, fill to red. See, image कैसी हो गई? Red. Use gray. So now the image is gray. So using any code editor, any text editor, we can even change the path. So how to build these images SVG? This is a part of HTML5. So ये जो image का path है, means code है that you can simply see in your brackets editor, and bracket can even give you the a hint. जैसे
वी कैन हम लोग इसमें क्या ऐड कर सकते हैं टू बॉर्डर, तो बॉर्डर के लिए वी कैन यूज आउटलाइन, वी हैव SVG border, stroke. So let's say stroke is 000 black. तो stroke क्या कर रहा है, सी इसको आउटलाइन दे रहा है, तो ये क्या है इसका स्ट्रोक, तो स्ट्रोक क्या होता है इसकी आउटलाइन। यू वांट रेड स्ट्रोक तो रेड कलर दे दो, तो सी स्ट्रोक का कलर रेड हो गया। बाय यूजिंग स्ट्रोक अब आपको विड्थ बढ़ानी पड़ेगी, लेट्स से 14 कर देते हैं। ओके, सो दिस इज द स्ट्रोक ऑफ इमेज। इफ यू रिमूव स्ट्रोक ये बाय डिफॉल्ट ऐसे आ जाएगा आपका। सो सी दिस इज माय एसवीजी, और एसवीजी को हम लोग कोड एडिटर पे भी एडिट कर सकते हैं, सो इट्स वेक्टर बेस। सो इमेज इंसर्ट करना इज वेरी इजी, जस्ट यूज IMG विद SRC एंड ऑल्ट। मेक श्योर आपका पाथ हमेशा प्रॉपर हो। So if this is your path, this is a relative path, or even you can use absolute path using some CDNs. Okay, so both are compulsory, SRC be compulsory and alt. Next is the total attributes. So like C, we have seen कि SRC is compulsory, ALT alternative is compulsory. Then next क्या है आपका टाइटल, टाइटल भी आपका ऑप्शन होता है। विड्थ एंड हाइट दे ऑल आर ऑप्शन। टाइटल क्या है आपका, लाइक माउस ओवर, जब मैं इस पर माउस ओवर करूँ सो टूल टिप में इमेज का टाइटल आ जाए, जस्ट माउस ओवर ऑन द इमेज, सी कर्सर के नीचे आपको इसका टाइटल मिल जाएगा। तो ये इसका क्या है टाइटल एट्रीब्यूट्स। अगेन इट्स ऑप्शन, कंपल्सरी नहीं है, कंपल्सरी दो ही हैं, SRC एंड ऑल्टरनेटिव। सो व्हाट इफ ऑल्ट इज मिसिंग, पिक्चर ऐसी आएगी, ठीक है। So suppose not alt, SRC is missing. This is suppose in this picture I just forgot to mention the extension. तो extension यहाँ पे मिस हो गया है, तो सी पिक्चर कैसे आ रही है ऐसे, तो ये पिक्चर को ऐसे आइकन में दिखाएगा, बट इसका जो alt होगा वो उसके साथ डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। एंड दिस इज द वैलिडेशन एरर, व्हेनेवर यू स्किप द पाथ और इमेज का पाथ गलत होता है, जैसे सी दिस, आपके पेज पे एक एरर आता है, एंड दैट इज द कंसोल एरर। तो गो टू ब्राउजर कंसोल, सी फाइल दिस ball.gi at line number 13 is missing, so you have to check this tool। आप क्रोम के इंस्पेक्ट में जाओ, गो टू कंसोल, सीधा एरर। तो अगर कोई फाइल मिसिंग होगी, पाथ मिसिंग होगा, तो उसका एरर आ जाएगा। वन मोर इमेज वी यूज इन हेड, और उसको हमको कहते हैं आइकन। सो फॉर आइकन वी यूज लिंक टैग। तो विद लिंक फर्स्ट इज REL, देन इज HREF। तो REL क्या है यहाँ पे आइकन, तो दिस इज एन आइकन इमेज। आइकन इमेज कहाँ आती है टाइटल के साथ, यहाँ पे। नाउ चेंज द पाथ, मैंने कहा पिक स्लैश लेट्स से logo.png, तो दिस इज द पिक्चर और डेस्कटॉप का logo.jpg। तो सी आई कैन चेंज, तो इट्स अ स्क्वायर इमेज। तो यूजुअली ये आप स्क्वायर इमेजेस जो होती हैं उनको यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो इसका जो स्टैंडर्ड साइज है 64x64 इज रिकमेंडेड। तो दिस इज द टाइटल इमेज। तो ये जो आइकन इमेज है ये फैब आइकन इमेज भी होती है। सो दिस इज द इमेज फॉर टाइटल, एंड these are my HTML images, ठीक है। दिस इज हाउ वी कैन ऐड इमेजेस इन HTML, ठीक है। क्लियर, कोई डाउट Yes, sir. रिलेटेड टू इमेजेस? No, sir. चलिए।